Hello students, lecture number 3, chapter 4, accounting ratios and analysis. Last time we discussed the probability ratios and solved some examples of probability ratios. Today we will discuss the liquidity ratio and solvency ratio. In liquidity ratio, in liquidity ratio, current ratio and liquid ratio, or in solvency ratio, debt to equity ratio, total asset to debt ratio, proprietary ratio, and fourth one, interest coverage ratio. Interest coverage ratio. So we'll start from the current ratio. तो फर्स्ट ऐसे देखने जाओ तो आगे फोर्थ रेशियो किया तो ये हमारा फिफ्थ रेशियो है. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. तो करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज करंट असेट्स करंट असेट्स में स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, prepaid expense, debtors, bills receivable. डेटर और बिल्स रिसीवेबल सपोज है तो उसमें से लेस डेटर लेस बीडीआर, देन कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इनकम,
And in current liabilities, creditors, bills payable, bank overdraft, BOD, then tax provision, outstanding expense, pre-received income, all are considered as a current liabilities. Normally, नॉर्मल केस में मीन्स उसका 2:1 सपोज रेशियो मिल रहा है तो इट इज़ कंसिडर एज ए आइडियल रेशियो. 2:1 जो है तो समझ लो कि वो एक आइडियल रेशियो है. सो नाउ नेक्स्ट वन इज लिक्विड रेशियो. तो इन लिक्विड रेशियो वी वांट अ लिक्विड असेट्स. तो एक्सेप्ट द स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सेप्ट द स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस, ऑल द असेट्स इज कंसिडर एज अ liquid assets. All assets is considered as a liquid assets, like debtors, bills receivable, cash, bank balance, short term investment, outstanding incomes, all are considered as a liquid assets, except stock and prepaid expense. So now the second one is liquid ratio. Liquid ratio is equal to liquid assets divided by current liability. Liquid assets divided by current liability. तो ये हमारे लिक्विडिटी रेशियो थे. बोथ आर द लिक्विडिटी रेशियोज. नाउ विल डिस्कस द सॉल्वेंसी रेशियो. दिस इज द 6th नंबर, सॉल्वेंसी रेशियो. तो इन सॉल्वेंसी रेशियो नाउ विल गिव द 7 नंबर, डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट टू इक्विटी रेशियो. तो डेट टू इक्विटी रेशियो सिंपली यहीं से तुम्हें समझ आ जाना चाहिए. डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट्स अपॉन इक्विटी. डेट्स मीन्स लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट liability. In debt means liability, only the long term, it means non current liability is considered. And equity means shareholders fund. Equity means shareholders fund. So equity means shareholders fund. Equity share capital. Preference share capital.
reserve and surplus, then profit and loss credit balance also included, less fictitious assets, that means profit and loss account debit balance, and the answer is shareholders fund. So from the equity share capital, preference share capital, and reserve and surplus, the sum of all these items minus debit balance of profit and loss account will be deducted from the total of all three items, and the answer will be shareholders fund. And now the long term liability, it means non current liability, we know very well. Debentures, bank loan, debentures, bank loan, public deposit, or all any other long term liabilities are included. So this is the debt to equity ratio. Next one है total asset to debt ratio. Next 8 number, total asset to debt ratio. टोटल असेट टू डेट रेशियो, तो ये भी पता चल जाएगा, टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेट्स, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज. डेट मीन्स नॉन करंट लायबिलिटी. तो नॉन करंट लायबिलिटी वी नो वेरी वेल. Total assets and one more things, there are two approaches to find the equity, it means shareholder funds, but we'll discuss after. The second one approach is this one, the liability side approach, it is called also the liability approach, and second one is assets approach, we'll discuss later. Total assets, total assets means non current assets और करंट assets. या तो फिर टोटल ऑफ असेट साइड of balance sheet minus fictitious assets, fictitious assets, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हो, डिबेंचर्स डिस्काउंट हो सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑल आर. So that's a total asset to debt ratio. Total assets divided by debt. Debt यानी कि liabilities, it means only non-current liabilities. If there is no instructions, we consider only the non-current liabilities. Now next 9 number, and it's a proprietary ratio. तो proprietary ratio simply suppose mind में करना हो कि तो proprietor 9 number. Next proprietary ratio, then proprietary ratio owners fund divided by total assets. प्रोप्राइटरी रेशियो, दैट मीन्स प्रोप्राइटरी रेशियो का मीनिंग क्या है कि मीन्स टोटल जो असेट्स बिजनेस में है
उसमें प्रोपराइटर्स के यानी कि ओनर्स का कितना फंड इन्वेस्टेड है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोपराइटरी रेशियो, यानी ओनर ने कितने पैसे मीन्स इन्वेस्ट किए, यानी टोटल असेट्स में ओनर्स का मीन्स प्रपोर्शंस कितना है वो फाइंड करने के लिए प्रोपराइटरी रेशियो। फॉर एग्जांपल के 5 लाख की असेट्स हैं, उसमें 2 लाख ओनर्स के हैं, तो 2/5 यानी प्रोपराइटरी रेशियो 0.4:1 रेशियो होने वाला है, यानी कि 1 रुपीज़ में टोटल 1 रुपीज़ की असेट्स में से 40 पैसे या 50 पैसे की असेट्स ऑनर्स की है और बाकी मीन्स उसने लायबिलिटी क्रिएट की है, तो वो चेक करने के लिए प्रोपराइटरी रेशियो है। एंड टू फाइंड दी ऑनर्स फंड ऑल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर फंड्स। ऑनर्स फंड फाइंड करने के लिए 2 अप्रोचेस है, आगे मैंने डिस्कस किया था, दोनों अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे अभी। एंड टोटल असेट्स वी नो वेरी वेल, टोटल असेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, ये हमारा टोटल। फिक्टिशियस असेट्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, या तो फिर टोटल असेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट, टोटल ऑफ असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट माइनस फिक्टिशियस असेट्स लेस कर लो, तो ये हमें मिल गई टोटल असेट्स। इसलिए टोटल असेट्स तो रेडी हैं। ऑनर्स फंड के 2 अप्रोचेस है, दोनों डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक बेसिक बैलेंस शीट मेंशन कर रहा हूँ। एक बैलेंस शीट है, समझ लो कि बैलेंस शीट में हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पे कैपिटल यानी शेयर कैपिटल हो सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी, और एट द एसेट साइड नॉन करंट assets, current assets and fictitious assets। तो असेट साइड अप्रोच मीन्स असेट बेस्ड अप्रोच, फॉर एग्जांपल के असेट बेस्ड अप्रोच है, तो असेट साइड की सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो फ्रॉम दी गिवन इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दी टोटल असेट, इट मीन्स नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, और ये टोटल में से लेस नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, करंट और ये दोनों टोटल असेट्स में से लेस कर लो, तो ये मिल गया, दैट्स ऑनर्स फंड, ये है दैट्स ऑनर्स फंड्स, विल गेट दी ऑनर्स फंड एंड दैट्स कॉल्ड असेट्स बेस्ड अप्रोच। और लायबिलिटीज अप्रोच हमने आगे डिस्कस किया हुआ है, लायबिलिटी बेस्ड अप्रोच, तो उसमें लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसी से हमें फाइंड करना है कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और फिक्टिशियस असेट सपोज है तो उसे मीन्स लेस कर देंगे, यानी दोनों कैपिटल का मीनिंग है यहाँ पे शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो उसे लेस कर दो, और जो आंसर है दैट इज दी लायबिलिटी बेस्ड, इट्स ऑनर्स फंड, ऑनर्स फंड, that's a honors fund. So there are 2 approaches, one is liability based and second is assets based approach। दोनों अप्रोच से यानी कि इस सम में जैसे इंफॉर्मेशन है हमारे पास, प्रॉब्लम्स में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हमें ये दोनों
नॉलेज होनी चाहिए। ये सब डिटेल्स परफेक्टली हमारे माइंड में क्लियर है तो हम इजीली सम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो सिंपल है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मीनिंग क्या हो रहा है कि आप जितना प्रॉफिट कर रहे हो, वॉट एवर द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, एंड वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं। दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो हमने क्रिएट की है, जो हमने पैसे बिजनेस में पब्लिक के पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि लायबिलिटी क्रिएट करके उस पर हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। टोटल प्रॉफिट में से ऑलरेडी मीन्स हमने जितना इंटरेस्ट पे किया है वो लायबिलिटी क्रिएट की है, तो वो मीन्स कितना रेशियो है, तो वो चेक करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वी फाइंड द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टू चेक द हाउ मच इंटरेस्ट पेड, मीन्स हाउ मच इंटरेस्ट पेड टू क्रिएट द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और टोटल प्रॉफिट में से वो रेशियो कितना है वो चेक करने के लिए हमारे टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट का रेशियो कितना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए जो इंटरेस्ट पे किया है वो रेशियो कितना है, वो फाइंड करने के लिए दैट्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सिंपल है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो में हमने कैसा प्रॉफिट फाइंड किया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट और अर्निंग चाहिए, तो अर्निंग और प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जो प्रॉफिट है तुम्हारा वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले कितना है बिजनेस का, और उसमें तुमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए जो इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट पेड और टोटल इंटरेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए हमने जो इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ये दोनों मीन्स बहुत ही सिंपल है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड करना है तो मीन्स प्रॉब्लम्स अच्छे से चेक करना है कि प्रॉब्लम जो है, यानी कि जो सम्स हमारे पास है एग्जाम्पल, उसमें पहले तो प्रॉफिट कैसा है, प्रॉफिट बिफोर दिया हुआ है या प्रॉफिट आफ्टर है। नॉर्मली समझ लो कि प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दे दिया है, आफ्टर टैक्स है, आफ्टर इंटरेस्ट है, तो बिफोर अर्निंग और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड करने के लिए अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस नीचे से ऊपर की साइड पर मीन्स बॉटम टू टॉप जा रहा है तो सिंपल है, मीन्स यहाँ पे सबसे पहले टैक्स ऐड करना है तुम्हें। सबसे पहले क्या ऐड करना है, टैक्स, और टैक्स ऐड करने के बाद इंटरेस्ट, क्योंकि नॉर्मली इंटरेस्ट फर्स्ट डिडक्ट होता है। तो ये हमारा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये तुम्हारा हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, तो जितनी भी लॉन्ग टर्म डेट्स है, जितनी भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, उसका इंटरेस्ट तुम्हें काउंट करना है। जैसे डिबेंचर है, 10% के डिबेंचर है, फॉर एग्जांपल समझ लो कि 10% के डिबेंचर 1 लाख रुपीज़ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ कि भाई 10,000 रुपीज़। फिर और कोई मीन्स है तो उसे ये सब ऐड करके टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो सिर्फ इंटरेस्ट करना है, और जो भी इंटरेस्ट है वो तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट में ऑलरेडी ऐड होने वाला है, तो वो कैलकुलेशन तो कंपलसरी है। तो ये मीन्स कैलकुलेशन करके हम इजीली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सो जितने भी आज हमने जो टोटल 6 रेशियोज डिस्कस किए हैं वो सभी रेशियो को मीन्स अच्छे से लर्न करना है तुम्हें,
और प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में ये 6 रेशियो से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं